Good morning, students. In my previous video, we discussed about the physical properties of metals and non-metals. In this video, I will discuss about chemical properties of metals and non-metals. What do you mean by chemical properties? Chemical properties means how do these metals and non-metals react with many other substances like oxygen, water, acid, etc. Isn't it? So first we will study about reaction with oxygen. We will study how do metals and non-metals react with oxygen. If you do the activity I will discuss now, then you will see that metals react with oxygen to form metallic oxides which are basic in nature. Basic means it will turn blue litmus, it will turn red litmus, blue or blue litmus red. It will turn red litmus blue. That means it is alkaline or basic. Clear? So that means what happens if we react, if we put magnesium to react with oxygen, then it burns with bright white light and forms white powder. In the activity you see, we can hold a magnesium ribbon with tongs. tongs चिमटा होता है ना, उसी तरह से केमिस्ट्री लेबोरेटरी में tongs होता है, उससे आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़िए, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसको जलाइए, जलाने के बाद आप देखेंगे कि ये जल रहा है वाइट लाइट के साथ, और क्या बना रहा है, वाइट पाउडर। तो ये वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी हैव लर्न टू हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शंस इन क्लास 7. सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, M2Mg plus O2 is equal to 2MgO. And if we collect this powder and dissolve it in water, then magnesium hydroxide is formed. That is basic in nature, isn't it? Magnesium hydroxide is base or alkali. Alkali means the base which dissolves in water. So if we dissolve magnesium oxide, that is the white powder, when white powder dissolves in water, it forms magnesium hydroxide. That is why when we put red litmus in it, it turns blue. That means the resulting solution, that is magnesium hydroxide, is basic in nature. Now second activity for non-metals. Magnesium is metals. Now we will see about non-metals. We take a small piece of charcoal in deflagrating spoon. That spoon in which we can ignite anything, and we put the spoon in a gas jar and cover it with a lid. Then if we remove the spoon from the jar after some time, add some water in the jar and cover it. Mix the contents in the gas jar by shaking it well. Pour the solution in a watch glass and put a strip of blue litmus paper in it. The blue litmus turns red, indicating that solution is acidic. This happens because charcoal burns in presence of oxygen to form carbon dioxide gas, which dissolves in water to form carbonic acid.
and carbonic acid is acidic in nature, so it turns blue litmus red. Understood? What we will do in this experiment, we are doing this experiment, we want to see the reaction of oxygen with non-metal. So we take carbon, charcoal is made up of carbon, एंड वी बर्न इट. एक स्पून रहता है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को बर्न कर सकते हैं लेबोरेटरी में. उसमें आप चारकोल लीजिए, उसको बर्न कराइए और गैस जार को ढक दीजिए. ढकने के बाद दिस इज एक्टिविटी 2 ऑफ दिस लेसन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ढकने के बाद उसमें से स्मोक निकलेगा, उसको भरने दीजिए. उसके बाद स्पून निकाल लीजिए, ठीक है ना. और उसमें फिर पानी डालिए और ढक्कन लगाकर उसको शेक कीजिए. तो क्या मतलब हुआ, उसमें जो गैस बना है वो पानी में डिजॉल्व हो गया. डिजॉल्व होने के बाद उसमें कौन सा गैस बना है हम लोग जानते हैं. कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलने पर कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो पानी में घुलकर वो क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3. यह क्या है, इसका नेचर है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड. सो इट इज एसिड, that is why it turns blue litmus red. Now what are the equations? C plus O2 CO2, and this CO2 gas forms CO2 plus H2O forms carbonic acid H2CO3. Am I clear? So we have understood the reaction with oxygen for metals and non-metals. Now reaction with water. First we will see for metals, we take magnesium piece in a test tube and water is poured into it, a test tube. You can see in the diagram in the activity. We put one, we cover with another test tube. So what happens? Magnesium reacts and we heat it by Bunsen burner. There is burner in the laboratory that is called Bunsen burner. Bunsen has discovered this burner, that is why its name is Bunsen burner. So we burn this burner and heat this solution. What happens? Magnesium hydroxide is formed, Mg plus H2O in hot case. That means when we heat the solution, then only magnesium hydroxide is formed to liberate hydrogen gas. Liberate मतलब निकलता है. कौन सा गैस इसमें निकलता है रिएक्शन से, हाइड्रोजन गैस. इसका टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसमें अगर एक दिया सलाई जला करके मैच बॉक्स का स्टिक जलाएंगे तो पॉपिंग साउंड होगा, बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, मज़ा भी आएगा इसको करने में. तो इसका मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है ना. तो रिएक्शन क्या होगा, Mg plus H2O, Mg plus 2H2O. When we heat it, magnesium hydroxide MgOH whole twice is formed plus H2 gas. So we can say that metals react with water to liberate hydrogen gas, forming hydroxide, isn't it? तो जितने भी मेटल हैं सबका रिएक्टिविटी अलग है, ठीक है ना. किसके साथ, वाटर के साथ. सोडियम पोटासियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसको पानी में रखिएगा तो आग ही उसमें लग जाती है. मैग्नीशियम ठंडे पानी में नहीं रिएक्ट करेगा, इसलिए हम लोगों ने गर्म किया एक्टिविटी में. जिंक बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा. आयरन तो स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम भी तो वाटर ही है, वाटर का फॉर्म है, तो उससे वो रिएक्ट करेगा आयरन. इसका मतलब लेस रिएक्टिव है आयरन. और कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मरकरी, इसको तो मतलब ही नहीं है वाटर से, और वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है. समझ गए हम लोग. अब देखेंगे नॉन मेटल कैसे वाटर से रिएक्ट करता है. ये वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है नॉन मेटल, ठीक है, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है. जैसे फास्फोरस को भी वाटर में रखते हैं, नहीं तो एयर से ही रिएक्ट कर लेता है और फास्फोरस ऑक्साइड बना देता है, इसलिए इसको किस में डुबा कर रखा जाता है, पानी में, ठीक है, वाटर में.
We are studying chemical properties of metals and non-metals. We have studied the reaction of metals and non-metals with oxygen first, second with water, and third with acids. Now we will study about reaction with acids. In the activity you see, we take some iron nail. Iron is metals, so we are observing the reaction of acid with metals, and we take dilute acid. So what happens? Reaction takes place, forming hydrogen gas. We put the setup like this. In test tube we take iron nails and pour some dilute HCl. Dilute means very thin dilution. That means water is more, then it is dilute, and water is not very less, then it is called concentrated. So we take dilute hydrochloric acid. So hydrochloric acid reacts with iron to form salt and hydrogen gas. And how will you see the presence of hydrogen gas? If we bring one matchstick, burning matchstick in it, then it burns with popping sound as we did earlier. What is the reaction? Fe plus 2HCl is equal to FeCl2 iron chloride plus hydrogen gas. Similarly, zinc reacts with sulfuric acid. Sulfuric acid is acid. We are studying the reaction of metals and non-metals with acid. So if we react zinc, if zinc reacts with sulfuric acid, then zinc sulfate is formed and hydrogen gas is released. So we can say that most metals react with dilute acid to liberate hydrogen gas and form metal salt. We have studied in class 7 acid, base and salt. What is salt? Salt is the substance which is formed by the reaction of acid and any metal, isn't it? So we have seen that how iron and zinc are reacting with acids. Now you will see that copper and lead do not react with dilute hydrochloric acid. They react with sulfuric acid and nitric acid but not liberate hydrogen gas. मेटल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है. गोल्ड और प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करता है एसिड से, इसीलिए तो हम लोग उसका ज्वेलरी बनाते हैं और पहनते हैं, है ना, ताकि कोई नुकसान ना हो. नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करता है एसिड से, और कुछ मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस. अगर आप लेंगे हॉट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तब वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विथ एसिड्स. नाउ रिएक्शन विथ अल्कलीज. अल्कलीज मीन्स द बेसेज विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. तो अल्कली से कैसे रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम और जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना. तो हम लोगों ने कितना रिएक्शन पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स का? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड रिएक्शन विथ अल्कलीज. नाउ वी विल रीड समथिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी का एक सीरीज बना होता है, ठीक है, उसी के आधार पर उसका रिएक्टिविटी होता है. मतलब इस प्रकार से अरेंज किया गया है मेटल्स को कि हम लोगों को पता चले कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसका रिएक्टिविटी कम है. आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ऊपर सबसे ज़्यादा है और नीचे सबसे कम है. पोटासियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम,
Aluminium is less reactive than magnesium. Zinc is less reactive than aluminium. Iron is less reactive than zinc. Lead is less reactive than iron. Copper is less reactive than lead. Mercury is less reactive than copper. Silver is less reactive than mercury, and gold is less reactive than silver. And at last, platinum is least reactive than in the series, isn't it? So we can say that potassium is the most reactive metal, while platinum is the least reactive metal. Clear? So we should learn this table so that we may understand that which element is most reactive and which is less reactive. Clear? Now we will read something about displacement reaction. We have studied it in class 7. A reaction in which a more reactive metal displaces a lesser reactive metal. अब हम लोग इस प्रकार से डिफिनेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग सीरीज जान गए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज. सो वी में से दैट हमने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को हटा देता है ना, डिस्प्लेस कर देता है. कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो सीट पर से हटा देता है वीक बच्चे को. उसी प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट है वो वीक रिएक्टिव एलिमेंट को, मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है. एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So now we can define displacement reaction as a reaction in which a more reactive metal displaces a lesser reactive metal from the aqueous solution of its salt is another example of a displacement reaction. Aqueous means पानी में सॉल्यूशन को, वाटर में सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? aqueous solution. AQUEOUS. Aqueous means solution in water. Now we may say that we may see in this activity, you take 50 milliliter of water and dissolve copper sulfate in it. Copper sulfate is a salt. It may be obtained from the laboratory. So CuSO4, if we dissolve it in water, solution becomes blue. Now we take one magnesium ribbon and we dip it into it. What happens? Magnesium reacts with copper sulfate and it displaces copper. So what happens? The color of the solution changes and it becomes colorless. That means copper sulfate is blue but it forms magnesium sulfate. कॉपर को वहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि कलरलेस है. इसलिए हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. See the reaction. Mg plus CuSO4, Mgs is equal to MgSO4 plus Cu. कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया मैग्नीशियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है. अब रिएक्टिव सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं. तो कॉपर उसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम हटा दिया और खुद वहाँ जम गया और बना दिया मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस है, इसलिए सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया. समझ में आ गया? इसी प्रकार का एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, जब इसमें कॉपर वायर को डिप करेंगे. ठीक है, इसका हम लोगों को रिएक्शन भी लिखना चाहिए. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन we understood on the focusing the reactivity series of metals, isn't it? Now we will learn about noble metals. NOBLE. Noble metals means we see in the reactivity series that platinum is the least reactive metal. सबसे कम रिएक्शन कौन करता है? प्लैटिनम. एयर से भी रिएक्ट नहीं करता, वाटर से भी नहीं करता, एसिड से भी नहीं करता, बेस से भी नहीं करता, और भी बहुत सारे सब्सटेंस से नहीं करता है. उसी प्रकार से गोल्ड भी नहीं करता है. इसीलिए हम लोग गोल्ड और प्लैटिनम को क्या बोलते हैं? नोबेल मेटल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नोबेल मेटल्स. इसको किसी से मतलब नहीं है, बहुत संत हैं, सभ्य हैं, है ना, किसी से रिएक्ट नहीं करते, उलझते नहीं हैं.
तो इसका मतलब हुआ नोबल मेटल्स किसी बहुत लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। और ये हाईली डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में। डक्टाइल मतलब क्या हुआ? डक्टाइल मतलब हुआ कि थिन वायर में इसको आराम से बनाया जा सकता, चेंज किया जा सकता है, और इससे शीट भी बनाया जा सकता है ना। इसलिए इसका हम लोग यूज़ बहुत करते हैं थिन फॉयल बनाने में, और इसके कारण हम लोग इससे ज्वेलरी भी बनाते हैं, प्लैटिनम से और गोल्ड से। बहुत ये पसंद किया जाता है। अब ये अक्षय तृतीया पर कितना गोल्ड सेल हुआ है, पटना में पेपर में आया था। तो इसका मतलब है कि गोल्ड और प्लैटिनम बहुत पसंद किया जाता है ज्वेलरी के लिए, है ना। प्लैटिनम का यूज डेंटिस्ट्री में भी होता है, दांत में लोग लगवाते हैं सुंदर दिखने के लिए, या दांत खराब हो जाता है तो चेंज करने के लिए, है ना। और इंस्ट्रूमेंट बनाने के भी काम आता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है राइट टू यूजेज ऑफ प्लैटिनम, देन यू विल राइट दिस। प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सिल्वर मिलाइए या कॉपर मिलाइए, तब हार्ड बनेगा, तभी ज्वेलरी बन सकता है। तो इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? कैरेट से, CARATS, या के से भी शुरू कर सकते हैं, KARATS। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स, लिखा रहता है, देखे होंगे 24 कैरेट गोल्ड, ऐसा लिखा रहता है, मतलब एकदम शुद्ध है। लेकिन 24 कैरेट ले लोगे और तो उससे नहीं बन पाएगा, उसमें आपको मिलाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसलिए इसका मतलब है 24 पार्ट्स में कितना है उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैरेट। तो जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड लेंगे, मतलब कि 22 पार्ट गोल्ड में और दूसरा 2 पार्ट कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो 24 पार्ट में पार्ट्स मिक्सचर ऑफ गोल्ड विथ कॉपर और सिल्वर, दिस इम्प्लाई दैट प्योर गोल्ड इज ऑफ 24 कैरेट्स। तो 22 कैरेट का क्या मतलब हुआ कि 22 पार्ट गोल्ड है और बाकी 2 पार्ट आपका कॉपर है या सिल्वर है। सो वी कैन नॉट मेक ज्वेलरी और एनीथिंग with pure gold because it is very soft. So we must add copper or silver in it for making jewelry and other things. Now we will read about uses of metals, alloys and non-metals. हम लोगों ने इतना पढ़ा मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, एलॉय के बारे में, तो इसका यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स। हमारे जीवन में मेटल्स का बहुत ही बड़ा योगदान है ना। सिविलाइजेशन में शुरू से इसका यूज होता चला है। अर्ली मैन भी आयरन का टूल्स का इस्तेमाल करते थे कुछ दिनों के बाद, और एवरीडे लाइफ में हम लोग आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर का बहुत आयत से यूज करते हैं। आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं? आयरन का। कुकिंग वेसल बनाने में तवा रहता है, कढ़ाई रहता है, ये सारा चीज़ क्या चीज़ से बनता है? आयरन से ही। और बॉयलर, स्टोव्स, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, चेन्स, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट्स, नेल्स, सारा चीज़ तो आयरन से ही बनता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सारा चीज़ हम लोग आयरन से बनाते हैं, इसलिए आयरन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। किस मेटल का सबसे ज़्यादा यूज होता है? आयरन का। उसके बाद आता है नंबर एल्युमिनियम का। यह बहुत लाइट मेटल है, इसलिए एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में बहुत काम आता है। हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए जो उसका बॉडी बनता है वो एल्युमिनियम से ही बना रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स एंड थिन फॉयल्स विच आर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन। एल्युमिनियम फॉयल हम लोग टिफिन पैक करते हैं तो मम्मी लोग देती है ना,
पराठा को उसको रैप करके, ताकि फ्रेश रहे। कॉपर इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। खाना बनाने के काम में भी वेसल, बर्तन बनाने का काम आता है। और इलेक्ट्रिकल केबल में, वायर में कितना यूज होता है कॉपर का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बहुत अच्छा है। सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेज, टेबल वेयर एक्सेट्रा। सिल्वर तो हम लोग ज्वेलरी बहुत बनाते हैं, पहनती हैं ना, वीमेन लोग पहनती हैं पैर में पायल वगैरह, तो ये क्या चीज़ से बनता है? सिल्वर से। ये मैलिएबल है पूरा, और थिन फॉयल में शीट आराम से बन सकता है, इसलिए इसको डेकोरेटिंग फूड स्टफ़ में इसका यूज करते हैं। सिल्वर फॉयल का भी मिठाई वगैरह में डाला जाता है तो उसका रेट और बढ़ जाता है ना। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इतना महंगा है तो वायर में कौन यूज करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी में तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ये बाकी चीज़ों में यूज करते हैं ना, ज्वेलरी में, डेकोरेशन पीसेस बनाने में, टेबल वेयर में एक्सेट्रा। गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स आर यूज फॉर हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में अगर बहुत ज़रूरी पड़ता है तो इसको हम लोग यूज करते हैं, ताकि एक्यूरेसी बहुत अच्छा दे, है ना। तो हम लोगों ने अभी देखा कॉमन यूजेज ऑफ metals and non-metals. Now usage of alloys. Alloys, you know what is it? It is an homogeneous mixture of two or more metals or metal and a non-metal. जब homogeneous mixture बनाया जाता है मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर, तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, ALLOY, एलॉय। मतलब क्या हुआ, स्टील के बर्तन तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो स्टील कैसे बनता है? आयरन और कार्बन के मिलने से, है ना। तो आयरन को कार्बन से मिलाएंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलाया जाता है? मेल्ट कराया जाता है दोनों को, आयरन को भी और कार्बन को भी, और मोल्टन स्टेट में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अब मिक्स करने के बाद ठंडा किया जाता है, तो क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है, स्टील बन जाता है। उसी प्रकार से सारा एलॉय बनाया जाता है, समझ में आया? दे आर मिक्सड इन मोल्टन स्टेट। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब इसका कंपोनेंट्स आसानी से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसी को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि लेमन जूस वाटर में कैसे मिक्स हो जाता है, एकदम होमोजेनस दिखाई देता है, लेमन जूस कहाँ है, वाटर कहाँ है, उसे हम लोग कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। तो दो मेटल्स को या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करेंगे मोल्टन स्टेट में, तो होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। और होमोजेनस मिक्सचर जब ठंडा करेंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा, और वही सॉलिड एलॉय कहलाता है। क्लियर? तो एलॉय बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सारे काम में हार्ड भी होता है, और कोरोजन में रेजिस्टेंस होता है। कोरोजन मतलब, कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी मटेरियल गेट डिस्ट्रक्टेड, नष्ट हो जाता है अपने आप, स्वाभाविक प्रक्रिया से किसी भी वस्तु को नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोरोजन। जैसे कि आयरन, आयरन में अपने आप कैसे नष्ट होता है? जंग लग जाता है जब, रस्टिंग, देन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ कि उसमें कोरोजन लग गया, नष्ट हो गया, है ना। तो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जल्दी से कोरोजन नहीं लगता है। किसमें? एलॉय में। सिर्फ जंग ही लगना नहीं, किसी प्रकार से धीरे धीरे रिएक्शन से वो नष्ट हो जाता है कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन रेजिस्टेंट है एलॉय, इसलिए एलॉय बहुत उपयोगी है। इट इज़ वेरी मच यूजफुल। सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more metals or a metal and a non-metal, isn't it? That is called alloy. Now we will see some composition and usage of alloys. स्टील क्या चीज़ के मिलने से बनता है? आयरन एंड कार्बन। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज आता है स्टील, मशीन पार्ट्स में, यूटेंसिल्स बनाने में। स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल इसमें रहता है। तो ये कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, सर्जन डॉक्टर लोग करते हैं वो स्टेनलेस स्टील से ही करते हैं।
हम लोग स्टील का यूज नहीं करते बल्कि स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं ना बर्तन में। ब्रास क्या चीज़ से बनता है? कॉपर और जिंक से। कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, डेकोरेटिव स्टैच्यूज बनाने में, नट्स बोल्ट्स बनाने में। ब्रॉन्ज ये सब क्या चीज़ का नाम है? एलॉय का, कॉपर और टिन के मिलाने से बनता है। कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है, कॉइन्स में, मेडल्स में, स्टैच्यूज में। आप जीतेंगे कोई भी कंपटीशन तो आपको जो मेडल मिलेगा वो बनता है किससे? जनरली ब्रॉन्ज से, देखने में अच्छा लगता है। जर्मन सिल्वर, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल। इसको टेबल वेयर बनाने में काम आता है, टेबल पर सजाने का सामान। ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज से बनता है मिलाने से। मैग्नीज का सिंबल Mn। एयरक्राफ्ट का बॉडीज बनाने के काम आता है, हल्का होता है। ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाने के काम आता है। अल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट के मिलने से बनता है। मैग्नेट बनाने के काम आता है। गन मेटल, कॉपर, टिन और जिंक के मिलने से बनता है। ये गन बैरल, बंदूक में यूज करने के काम आता है। ठीक है। सो वी हैव स्टडीड द कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ एलॉयज। नाउ यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। Nitrogen is a non-metal. Nitrogen is used in fertilizer, which is essential for growth and development of seeds, isn't it? And plants, we studied in class 5 uses of nitrogen for plants, so it is very much used. Phosphorus is used in matchbox industry and in fertilizer. Iodine is used as an antiseptic. These are non-metals, so we are studying the uses of non-metals. Sulfur is used for making firecrackers, पटाखा बनाने में। गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वी नो। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली विच इज नॉन मेटल, इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। बहुत ही हार्ड होता है इसलिए दूसरे चीज़ों को काटने के काम आता है। ग्रेफाइट, आप देखेंगे पेंसिल बना होता है ग्रेफाइट से, and it is used in batteries and pencils. So now we have understood everything about chemical properties of metals and non-metals. So we have understood the lesson chapter 3, that is metals and non-metals. Thank you, students.